Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are doing well. Today our topic is heart. इसमें हम लोग स्टडी करेंगे structure of heart, function of heart and flow of blood through the heart. Now let's start the lecture. हमारा जो first topic है वो है structure of human heart. ह्यूमन हार्ट इज़ अ होलो फिब्रोमस्क्यूलर ऑर्गन. हमारा जो हार्ट होता है वो मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जिसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं. देन इट इज़ कोन शेप्ड. कोन शेप मीन्स के ऊपर वाली साइड से ये फ्लैट होता है, जिसको फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम बेस कहते हैं, और जो इसकी एंड होती है वो ब्लंट राउंडेड होती है जिसको हम लोग एपेक्स कहते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स. ये लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 to 6 नंबर ऑफ रिब्स. देन इट इज़ सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम क्लोज सेक्ट. ये पेरिकार्डियम हार्ट के गिर्द प्रेजेंट होती है टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर और एनी अदर डैमेज. outer part consists of inelastic white fibrous tissue. हार्ट के outer part में inelastic white fibrous tissue होता है. inner part consists of two membranes. inner membrane attached to heart and outer membrane attached to fibrous tissue. Then it has pericardial fluid is secreted between inner and outer surface membrane. Heart wall is composed of 3 layers of tissues: epicardium, myocardium and endocardium. Epicardium is the outer surface, is the outer layer that is present on outer surface of heart. Then myocardium, which is the middle layer, and then endocardium, which is the innermost layer. Epicardium is thin serous membrane comprises of smooth outer surface of heart. Then myocardium, thick middle layer composed of cardiac muscle cells which contract and relax. Then endocardium comprises of smooth inner surface of heart which consists of simple squamous epithelium. Heart walls are formed बाय फोल्ड्स ऑफ एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम में जो हमारे पास उसके फोल्ड से हमारे पास वेल्व्स बनते हैं जो कि हमारे ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने से अपोज करते हैं या फिर उन्हें फ्लो करने देते हैं. एट्रिया हैव कंपैरेटिवली थिन वॉल एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स. ये एट्रिया की कंपैरेटिवली थिन वॉल्स होती हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि एट्रिया से ब्लड को सिर्फ वेंट्रिकल्स में फ़्लो करना होता है, लेकिन वेंट्रिकल्स से ब्लड को थ्रू आउट बॉडी में फ़्लो करना होता है, होल बॉडी में. देन लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिक वॉल एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिक वॉल एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, क्योंकि इसमें जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसको जो ब्लड है वो थ्रू आउट बॉडी में पंप करना होता है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है वो सिर्फ ब्लड को लंग्स तक पंप करती है, और इसका जो रेशियो है वो है 1:3. देयर इज़ एन इंटरस्टिशियल सेप्टम बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. An atrioventricular valve is on each atrioventricular canal having cusp or flap. ये हर atrioventricular canal में एक atrioventricular valve present होता है which is formed by the cusp or flap. Tricuspid valve have 3 cusps and bicuspid valve have 2 cusps. Each ventricle contain cone-shaped muscular pillar called papillary muscles. In this picture, here are the papillary muscles, and in this picture, here they are papillary muscles. These muscles are attached by thin connective tissue strings called chordae tendineae to cusp of atrioventricular valve. ये हैं इसमें chordae tendineae. These are the chordae tendineae. These are the chordae tendineae. Okay.
पेपलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझते हैं अब हम इस पिक्चर के थ्रू। ये हमारे पास आ गए पेपलरी मसल्स, देन ये हमारे पास आ गए कॉर्डेट टेंडिनिया, और ये जो पेपलरी मसल्स होते हैं वो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल के साथ से अराइज होते हैं, अराइज फ्रॉम वॉल्स ऑफ ventricles and attached to atrioventricular valves. Here are the atrioventricular valve. Attach होते हैं atrioventricular valves के साथ through chordae tendineae. Here are the chordae tendineae. Now talk about the function of this structure. They prevent the backflow of blood from ventricles to atrium. When pressure inside ventricles increases, it pushes the cusp to close. It can even push the cusp into atria, so blood can flow back from here. Blood can flow back if the cusp are not attached to chordae tendineae. That's why we have papillary muscles and chordae tendineae. So when the ventricle contract, the papillary muscles contract. If the papillary muscles or chordae tendineae got damaged, it would cause prolapse of blood. Aorta has aortic semilunar valve and pulmonary trunk has pulmonary semilunar valve. Now we will talk about the flow of blood through the heart. इसमें हमारे पास इस पिक्चर को हम फॉलो करेंगे, पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। पहले ब्लड आएगा हमारे पास यहाँ से, सुपीरियर वेना कैवा से होते हुए यहाँ पे आएगा राइट एट्रियम में, देन हमारे पास राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, देन इनटू यहाँ से लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन्स से यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम में इंटर करेगा, फिर उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम में इंटर करने के बाद बाइकस्पिड वेल्व से होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व से होता हुआ एओर्टा में जाएगा, देन आर्टरीज, देन कैपिलरीज, वेन्स, एंड फिर हमारे पास यहाँ से इन्फीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट में इंटर होगा। यहाँ से वी विल फॉलो दिस पिक्चर, इन्फीरियर वेना कैवा, देन राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वेल्व, right ventricle, pulmonary semilunar valve, pulmonary arteries, lungs, pulmonary veins, left atrium, bicuspid valve, left ventricle, aortic semilunar valve, aorta, arteries, capillaries, veins, and then through inferior vena cava. Now we will study about function of human heart. Superior and inferior vena cava both carry deoxygenated blood. ये दोनों वेना कैवास जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज ऑल अदर वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स इन आवर बॉडी कैरी deoxygenated blood. The heart is a double pump because the right ventricle of heart send blood to the lungs and left ventricle send blood to whole body. Deoxygenated blood is slightly blue and oxygenated blood is bright red. Deoxygenated blood that enters the heart through superior and inferior vena cava is slightly blue, and oxygenated blood that arise from aorta is bright red. Wells oppose the backflow of blood. ये हम पीछे टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. The fibrous cord attached the cusp of atrioventricular valves to papillary muscle, preventing them from
flipping backward. Now heart contract. अगर heart contract करेगा तो ये 4 points arise होंगे, और अगर heart relax करेगा तो these 3 points will arise. Semilunar valves relax. Okay, we will discuss it after this picture. इसमें हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट SA node, then AV node, bundle of His, right bundle branch, left bundle branch, and then Purkinje fiber. इसमें हमारे पास SA node is an electric signal. जब ये आएगा तो हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा. देन आफ्टर 0 पॉइंट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड विल फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स ओपन होंगे और जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करेगा. देन आफ्टर 0.15 सेकेंड this signal from SA node is transferred to AV node. It means कि अब AV node after 0.15 second of SA node, अब AV node contract करवाएगा ventricles को. Then blood will flow from ventricles to onward. अब हम इस पिक्चर के थ्रू हार्ट की इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे. फर्स्टली हम देखेंगे SA नोड. दिस पॉइंट इज़ द SA नोड. दिस इज़ AV नोड. ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास सारी फाइबर्स एक बंडल में हैं, उसको हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस फाइबर्स, जहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा. देन इट विल अराइज, देन Purkinje फाइबर विल अराइज फ्रॉम इट. पहले बात करते हैं हम SA नोड की. SA नोड इज़ द सिग्नल फॉर एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट. इसमें हमारे पास होल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें हमारे पास एट्रिया से सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ फ्लो करेगा. Then after 0.15 second, SA node signals the AV node. AV node जो है फिर हमारे पास होल वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब हमारा वेंट्रिकल फुल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो then blood will flow onwards. There is a delay between AV node and SA node and AV node, इसलिए कि हमारे पास AV नोड और SA नोड के बीच में गैप इसलिए है कि फुल ब्लड फ्लो कर जाए फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल. अब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट. इफ़ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेमिल्यूनर वेल्व्स रिलैक्स. जब हमारे पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रियम एंड वेंट्रिकल, तो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. दीज ये वाले हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, ये वाले ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ही ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकुलर की तरफ फ्लो होगा और वेंट्रिकल से ऑनवर्ड फ्लो होगा. और इसमें हमारे पास सेमिल्यूनर वेल्व्स रिलैक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे पास सेमिल्यूनर वेल्व्स का अभी काम नहीं है, तो वो रिलैक्स करेंगे. देन लब साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल इनिशिएट होगी. इफ़ द हार्ट रिलैक्स, इट मीन्स कि हमारे पास अगर एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो हमारे पास सेमिल्यूनर वेल्व्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सेमिल्यूनर वेल्व्स आर ऑपोजिट टू AV वेल्व्स. अब यहाँ पे हमारे पास जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो सेमिल्यूनर वेल्व्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और AV वेल्व्स रिलैक्स करेंगे और डब साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड.
SA node act as pacemaker of heart. SA nodes are present in superior posterior wall of right atrium. Then SA node is in contact with medulla oblongata. Medulla oblongata is the part of a brain. Impulse from SA node contract whole atrium, as we study in the previous picture कि जब हमारे पास SA नोड आएगा तो हमारे पास होल एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा. Impulse from SA node to AV node is the signal to contract ventricle. जब हमारे पास SA node से AV node की तरफ सिग्नल आएगा तो ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा. देन AV node आफ्टर 0.15 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल. ये हमारे पास SA node और AV node के बीच में 0.15 सेकेंड का गैप होगा ताकि पूरा का पूरा एट्रियम से ब्लड फ्लो कर जाए टूवर्ड्स वेंट्रिकल. AV node is stronger than SA node. Yes, AV nodes are stronger than SA node क्योंकि जो AV node है वो फुल वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और जो SA node है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे से एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं. That's why AV node is stronger than SA node. If you like the lecture, kindly share, subscribe and comment below. Like the video. Thank you so much.